Hi guys, the topic that we're going to start today is Arrhenius equation. Now, before I start with this topic, let's understand what Arrhenius equation is all about. Now, when we went to the start of the chapter, we saw that rate and temperature both are correlated to each other. The rate of a reaction and temperature are correlated to each other. And we also saw that for every 10-degree rise, the rate of a reaction becomes double. And we have done sums based on that also. Now, Arrhenius gave us an equation where he connected rate constant and temperature. The equation is, Arrhenius equation is K is equal to A into E raised to minus EA upon RT. This is the Arrhenius equation over there. So what is K over here? K is called as the rate constant or the velocity constant or you call it as speed constant Next, what is A? A is called as the Arrhenius factor or pre-exponential factor or you call it as the frequency factor. What is EA? EA is the activation energy. EA is the activation energy. R, it's basically nothing but universal gas constant. It's nothing but universal gas constant, and the value that we use is 8.314 joule per mole per Kelvin. And last, we have nothing but temperature, and temperature is in Kelvin. So take a fresh page, give the heading as Arrhenius equation, and please copy this. So can you understand from here, K and T are exponentially related to each other. K and T are exponentially related to each other. So the next thing which I do is establish a relation between K and T. K and T both are exponentially related to each other. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, as temperature increases, if all the other factors, activation energy is kept constant, Arrhenius factor is kept constant, can I say EA by RT decrease होगा, minus EA by RT increase होगा, and can I say K भी increase होगा, K भी increase होगा, क्योंकि अगर ये पूरा फैक्टर बढ़ गया तो K भी बढ़ेगा, and it will increase exponentially. And it will increase what? Exponentially. The next thing is understanding the relation between, log K to the base 10 versus temperature. So I take log on both the sides, I'll get log to the base 10 of K is equal to log to the base 10 of A plus log to the base 10
क्लियर है आपको ये? I basically use log AB is log A plus log B. ठीक है? Can I write this as I want to basically draw a graph of that's the graph that I want to plot over here. Now can I just rearrange this? Can I write this as is this clear? Now can I say that this is nothing but y, this is nothing but m, this is nothing but x, and this is nothing but c. This is a line of the type y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c, where the slope is negative. Hence, can I say the graph is going to be something like this? ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा जहां पे स्लोप क्या हो जाएगा सर? स्लोप विल बी, and what is this intercept over there? This intercept is nothing but log to the base 10 of a, log to the base 10 of a. a के बारे में डिटेल डिस्कशन भी करूंगा मैं. क्लियर है ये? प्लीज ड्रॉ दिस ग्राफ. Now, this has been a question in a lot of competitive exams. What is the slope? What is the y-intercept of the graph of log to the base 10k versus 1 by t? Please ये graph बना लीजिए आप लोग. Let's go to the next thing, which is nothing but the next graph. Right over there, draw the graph of log of k to the base e versus 1 by t. चलो, we'll again start with the RNS equation. K is equal to AE minus A upon RT. I just repeat, K क्या होता है? K क्या होता है? Rate constant. A क्या होता है? RNS factor. EA क्या होता है? Activation energy. R का वैल्यू कितना यूज करोगे? 8.314 joules per mole per Kelvin. और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में. Now just simple step over here. लॉग लिया है मैंने, देखिए यहाँ पे. जैसे मैंने यहाँ पे लॉग लिया है, log AB भी यूज किया है. log AB is log A plus log B. Can I write this as log E of A minus EA upon RT log E to the base E. ये वैल्यू 1 हो जाएगा. Hence, can I have this equation in this form? चलिए, ये इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन. y is equal to mx plus c. y देखो यही है, x 1 by t. चलिए ग्राफ प्लॉट करेंगे. ग्राफ कैसा होगा देखते हैं हम यहाँ पे. ग्राफ अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉग. ठीक है. अब कैन आई से slope will be nothing but minus EA upon R. And what is the C intercept? Can I say the C intercept will be चलिए कॉपी कर लीजिए. So we have done basically two graphs
और उनके कैसे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालते हैं आरएनएस इक्वेशन के। आरएनएस इक्वेशन से स्टार्ट किया था। आरएनएस इक्वेशन वाज k is equal to 8 into e raised to minus e upon rt. फिर फर्स्ट क्वेश्चन था log k to the base 10 versus 1 by t. सेकंड क्वेश्चन था log k to the base e versus 1 by t. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. You have a graph of log to the base 10 of log k to the base 10 versus 1 by t. और ग्राफ में आपको एक एंगल दिया 135 डिग्री. Find EA in calories and kilocalories. Now we have just done that slope. M is minus EA upon 2.303 R. Upon 2.303 R. चलिए यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? इस ग्राफ में स्लोप क्या हो जाएगा? Can I say इस ग्राफ का स्लोप एंगल दिया हुआ है tan थीटा, देखिए यहाँ पे. Can I say इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा -1. Hence can I say over here -1 is equal to minus EA upon 2.303 R. R का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? That's the next question. So if I just simplify, R का वैल्यू क्या यूज करेंगे? R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन. तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 2 ओवर हियर. EA क्या मुझे मिल जाएगा? EA would be, can I say 4.606 कैलोरीज और 4.606 into 10 raised to -3 किलो कैलोरीज. वापस रिपीट करता हूं मैं. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में दिया है एंगल 135 है. क्वेश्चन में दिया है एंगल 135 है. मतलब क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? यहाँ से स्लोप निकाला मैंने tan थीटा से, मुझे स्लोप आ गया -1. Now we know that from Arrhenius equation हमने just derived किया, slope is nothing but minus a upon 2.303 r. minus a upon 2.303 r. m is equal to -1. दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, मुझे ये आया. उसके बाद मुझे ये आ गया 4.606 कैलोरीज एंड 4.606 into 10 raised to -3 किलो कैलोरीज. देखिए क्या आपको क्लियर है कि नहीं? The next thing that we have is what are the units of A? Units of A क्या होगा? देखिए Arrhenius equation क्या है? K is equal to A e raised to minus A upon RT. ठीक है? Can I say ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा एक नंबर होगा, क्योंकि e raised to something will give me a finite number over there. Hence, can I say units of A are same as units of K. और सर K का यूनिट क्या होता है? K का यूनिट होता है मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस n सेकेंड रेज टू -1. और देखिए आपको ये क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कंडीशंस व्हेन K इज इक्वल टू A. Conditions when K is equal to A. So the Arrhenius equation is this basically. For K to be equal to A, for K to be equal to A, can I say I should have basically this entire term equal to 0. And when would this entire term be equal to 0? Can I say the first case? When EA is equal to 0, guys. क्योंकि जैसे ही EA 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे EA 0 आ जाएगा, E raised to 0 मुझे 1 आ जाएगा. Again repeat, मैं क्या बोल रहा था? K is equal to A when this entire thing is equal to 1. And when would this entire thing be equal to 1? When it is E raised to 0. ये पूरा का पूरा फैक्टर मुझे equal to 1 चाहिए, तभी K equal to 1 होगा. When EA is equal to 0, when EA is equal to 0, can I say K would be equal to A? Case 2 क्या होगा?
ओके केस वन एक बार देखो वापस, ए को 0 डाल दिया, e रेस टू 0 अपॉन आरटी हो जाएगा, मतलब e रेस टू 0 1 हो गया, तो k इज इक्वल टू a। केस टू देखते हैं, कैन आई से व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी k would be equal to a। when t tends to infinity, can I say k is equal to a? दो क्वेश्चंस किए मैंने, देखिए सबसे पहले यूनिट्स ऑफ a, यूनिट्स ऑफ a कैसे निकाला, k is equal to a into e raised to minus a upon rt। e raised to minus a upon rt is nothing but, can I say, a finite number, hence the units of k and the units of a are the same। what are the units of k, can I say units of k ये होता है, सर ये कहां से निकलते हैं, can I say ये यहां से निकलता है, याद करो k के यूनिट्स हमने यहां से डिराइव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, गिव द कंडीशंस व्हेन k is equal to a। k would be equal to a when this entire exponential factor is equal to 1, and when would this entire factor be equal to 1, either the numerator is equal to 0 or the denominator tends to infinity। r तो कभी चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए दो कंडीशंस है, दो कंडीशंस है, इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चंस है ब्लू बुक में। क्वेश्चन नंबर 334, क्वेश्चन नंबर 334 पहले कॉपी कर लीजिए आप। 334 क्वेश्चन अगर आप देखते हो, फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी E is equal to 0। E is equal to 0 बोल दिया उन्होंने, दैट्स दैट मेन स्टेटमेंट। अगर E इक्वल टू 0 दिया, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, रेट कांस्टेंट दिया है एट 300 केल्विन, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द रीजन इज, you know a very simple logic, for every 10 kelvin rate constant becomes double only when k is not equal to a, because a is equal to 0, k is always equal to a, it doesn't depend on temperature। again repeat, when a is equal to 0, when a is equal to 0, can I say k is always equal to a? k does not depend on temperature anymore, because वो पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म 1 बन गया। hence k at 3130 kelvin is equal to k at 310 kelvin, hence the answer to this is gonna be Bombay option itself। सी ऑप्शन के बाजू में लिखो, सी ऑप्शन के बाजू में लिखो, this would have been the answer if a was not equal to 0। this would have been the answer if a was not equal to 0। next question try कीजिए आप, 353 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 353 में देखो क्या बोला है, the rate constant, the activation energy and the Arrhenius parameters are given। तीन अलग अलग चीज दी है। the value of the rate constant at t tends to infinity, t is tending to infinity, can I say therefore k is equal to a, और a का वैल्यू देखो क्या दिया है वहां पे, a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 into 10 to 14। therefore can I say k is also equal to 6 into 10 to 14 per second। ऑप्शन बॉम्बे ओवर देयर। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन जो आप कर सकते हो इसके ऊपर बेस्ड, वो है क्वेश्चन नंबर 321। 321
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, कुछ बोला नहीं है, मतलब log to the base 10 के इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। ये इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन है, आपको कंपेयर करना है बेसिकली। आप जब आप कंपेयर करते हो, सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करा देता हूँ। Can I say on comparison log to the base 10 of a is equal to 6. Therefore, can I say a is equal to 10 raised to 6? A is equal to 10 raised to 6. देखिए कोई ऑप्शन में है क्या 10 raised to 6? Can I say A, C, D तीन अलग अलग ऑप्शन है। चलिए अब आगे मैं इसको कंपेयर करता हूँ, माइनस ए अपॉन 2.303 आर इज इक्वल, कंपेयर कीजिए पूरा टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैन आई से माइनस 2000, therefore can I say EA is equal to 2.303 into R into 2000। सर R का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सबके सब किलो जूल्स में है, हेंस R का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 8.314 into 10 raised to minus 3, 8.314 into 10 raised to minus 3 into 2000। किराए से 10 raised to minus 3 और ये तीन जीरोस 1 बन जाएंगे यहाँ पे, hence what am I remaining is so if I just take approximations over here, 2 into 2 4 4 into 8 around 32 आ रहा है मेरे को आंसर अप्रोक्सीमेशन करने पे। कैन आई से इट्स क्लोजेस्ट टू दिल्ली ऑप्शन। देखिए आपको समझ में आएगी, ये इक्वेशन दिया है हमें, हमने कंपेयर किया बेसिकली ये इक्वेशन के साथ, हेंस इट इज वेरी important that you remember this equation over there. If you remember this, it's going to be very easier to compare over there. You can't derive it every time, derive करो तो भी सही है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। When you compare it, you get log to the log A is equal to 6, A is equal to 10 raised to 6। फिर मैंने इस पार्ट को कंपेयर किया यहाँ पे, माइनस E अपॉन 2.303 R is equal to minus 2000। EA is equal to 2.303 R into 1000 into 2000। इसको सॉल्व करने पे मुझे आंसर आ जाता है, कैन आई से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मुझे आंसर आ जाता है। ये प्लीज लिख दीजिए आप, क्वेश्चन 324 ट्राई कर सकते हो आप, 327 ट्राई कर सकते हो इनफैक्ट, देखिए आपको आएगी। प्लीज लिख दीजिए ये क्वेश्चन, देखो आपको आएगी। नेक्स्ट है आरएचएस इक्वेशन at two different temperatures, right over there, RMS equation when two temperatures are mentioned in the question। When two temperatures are mentioned
क्योंकि सेम रिएक्शन है, आरएनएस फैक्टर सेम ही रहेगा। चलिए, कैन आई से ओवर हियर इफ आई टेक लॉग ओवर हियर? देखिए, समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? Now I say that T2 is more than T1. I'm giving you this data over there. ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कीजिए आप। So can I say I get over here log to the base 10 K2 minus log to the base 10 K1 is equal to, can I say this minus this, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस ए माइनस ऑफ माइनस, कैन आई से प्लस हो जाएगा। Now can I write this as log to the base 10 K2 by K1 is equal to minus A upon 2.303 R common ले लिया, 1 upon T2 minus A upon 2.303 कॉमन लिया मैंने, तो 1 upon T2 आ जाएगा, minus 1 upon T1 minus 1 upon T1। अब can I write this as minus A upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। बहुत सारी एग्जाम्स में सिर्फ ये क्वेश्चन खाली ये इक्वेशन ही पूछ लेते हैं। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं? वापस एक्सप्लेन करता हूं, मैंने डिफाइन किया है सेम रिएक्शंस के लिए K1 K2 दो अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए। So K1 RNS K1 is equal to A into E raised to minus E upon RT1, K2 is equal to A into E raised to minus E upon RT2। अब मैंने इसको log to the base 10 के टर्म्स में लिखा है। So I get basically equation 1, equation 2, equation 2 minus equation 1 क्या मैंने बेसिकली, तो कहना ही से ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर आपका 349, 349। You should be able to solve 349 now. Can I say 349 का आंसर हो जाएगा? ध्यान से देखिए वहां पे, इसे माइनस साइन को मैं अंदर भी लेके जा सकता हूँ। समझो ये माइनस साइन को मैं अंदर लेके गया तो कैन आई से ये प्लस हो गया, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए आगे देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log to the base 10 K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R। माइनस साइन को मैं अंदर लेके गया तो कैन आई से I have over here ओके,
यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2, सॉरी आगे क्या आ जाएगा, कह रहा है दिस इज TA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब वो क्वेश्चन देखिए, वहां पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट भी दिया है, उसमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला ऐड किया हुआ है, देखिए आप। ये क्या किया मैंने, यहाँ से देखो माइनस ए अपॉन 2.303 आता है 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, एलसीएम लिया तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, पहले मैंने दूसरे T2 माइनस T1 लिख दिया था, T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। अब ये माइनस साइन को मैं अंदर लेके जा रहा हूं, तो कहने से आई हैव ओवर हियर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। नाउ these are the sums which you will be solving when you have two temperatures T1 T2। क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बेस्ड अगर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर बेस्ड 373, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है 373। 373 में rate constant increases by 5%, can I say K2 is equal to 1.05 K1 हो गया, इसका मतलब rate constant increases by 5% when the temperature is raised from 27 degrees to 28 degrees। Can you find T1, T2? क्लियर है आपको? पूछा गया यहाँ पे EA, can I say the substitution will be log of 1.051 K1 upon K1, K1 K1 cancel यहाँ पे, is equal to EA upon 2.303 into 8.314 into T2 बड़ा होना चाहिए, okay, hence it's gonna be 301 minus 300 upon 301 into 300। इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा। Guys, you require the value of log 1.05 over here। log 1.05 का आपको वैल्यू चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। 373 क्लियर है आपको? नेक्स्ट सम ब्लू बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर वही पेज पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 375। 375 में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, EA दिया है, कितना दिया है? EA 58.3 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, T1 दिया है आपको, T1 कितना दिया है? T1 दिया है आपको 300 केल्विन। गाइस T1 T2 में हमेशा T2 ज्यादा लेना। पूछा क्या आपको? K2 by K1, पूछा क्या आपको? K2 by K1। ठीक है, R का वैल्यू भी स्पेसिफाई किया है, बेसिकली आपको लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल 58.3, फॉर्मूला क्या देखिए, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T, या फिर मैं स्ट्रेट अवे यूज कर सकता हूँ T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एग्जाम में अगर याद किया है T1 माइनस T2 है कि T2 माइनस T1 है, पॉजिटिव आना चाहिए आंसर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 58.3
ठीक है, आर का वैल्यू वो लोग ने दिया हुआ है, ये किसमें है, किलो जूल्स में है। इसके लिए आर का वैल्यू ऑफ 8.314 इंटू 10⁻³ यूज करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये किलो जूल्स में यहाँ पे T2 - T1। ठीक है, T2 कितना है, ये 5/305 इंटू 300। ये वैल्यू निकालने के बाद, ये वैल्यू निकालने के बाद आपको उसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, आपको उसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा। 375 क्लियर है। हाँ, आंसर्स एंटीलॉग टेबल लगेगा आंसर्स निकालने के लिए। यहाँ पे 374 दिखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 10 किलो कैलोरी पर मोल, 10 किलो कैलोरी पर मोल इंक्रीज, ओके, इन द रेट कांस्टेंट। बेसिकली हमें निकालना है K2 - K1 अपॉन K1 इंटू 100%, इंटू 100। हमें बेसिकली ये निकालना है इंक्रीज इन द रेट कांस्टेंट। वापस यूज करेंगे हम लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 - T1 अपॉन T1 T2। EA दिया है कि वहां पे, यस, EA दिया है 9 किलो कैलोरी, क्योंकि वहां पे 9 किलो कैलोरी यूज किया है, इसलिए यहाँ पे मैं 2 इंटू 10⁻³ यूज करूंगा। T2 T1 कितना दिया, देखिए 305 और 300 दिया है। यहाँ पे भी तो 5 अपॉन, कैलकुलेशन यहाँ पे काफी डिफिकल्ट हो गया, एंटीलॉग टेबल के बिना आप नहीं कर पाओगे ये। क्लियर है ये 374 भी। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371। 371 क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन में दिया है आपको बेसिकली 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 371 50% इन 30 मिनट्स, मतलब आपको बेसिकली टी हाफ दिया है 30 मिनट्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, और वापस टी हाफ को डिफाइन किया है क्या क्या उन्होंने, 10 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस बराबर, सॉरी एट 47 डिग्री सेल्सियस। पूछा क्या है, देखिए वहां पे पूछा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई ए पूछा है आपको। इक्वेशन लिख लेते हैं, लॉग ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन डेटा को। सर लेकिन K2 K1 तो दिया ही नहीं है। गाइस वो लोग ने एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि ये दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्डर है बेसिकली। Do we know the formula K is equal to 0.693 upon T half? K is equal to 0.693 upon T half. Hence, can I say log of 0.693 upon 10, the whole upon 0.693 upon 30 is equal to this entire thing. 0.693 0.693 cancel हो जाएगा, log of 3 आ जाएगा, तो can I say 0.4771 is equal to EA. EA किसमें चाहिए, देखिए वहां पे EA किलो जूल्स में चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2.303 into 10 into 8.31 into 10⁻³ सब्स्टिट्यूट किया मैंने, into टेम्परेचर देखना पड़ेगा क्या, 27 मतलब कनेक्ट से हो गया, और 47 वो 300 होता है, ये 320 होगा, 320 माइनस 300 अपॉन 320 इंटू 300। देखिए आपको एक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। यहाँ से आपको ये स्ट्रेट अवे मिल जाएगा किलो जूल्स में, क्योंकि मैंने आर का वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट किया, किलो जूल्स में सब्स्टिट्यूट किया, 8.31 इंटू 10⁻³ समझ में आया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। A reaction takes place in 3 steps. A reaction takes place in 3 steps with rate constant K1, K2 and K3. And K3. Overall rate constant K is equal to K1 into K3 upon K2. EA are 40, 30, 20 respectively. Find K if A is same for all 3 steps. Find K, find EA, find EA, find EA if A is same for all the steps. Basically आपको यहाँ RMS इक्वेशन ही यूज करना है। ये आपका RMS इक्वेशन है। Now define this for all the K's over here. Define कीजिए हर एक K के लिए। तो can I get over here? K1 के लिए क्या हो जाएगा? K1 into K3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन RT3 आ जाएगा द होल अपॉन ए सेम बोला है रिएक्शन का एक स्टेप्स का एक सेम दिया है तो क्या इसे ए कैंसिल हो जाएगा अब मैं क्या करूंगा बेसिकली सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज कि EA1 कितना दिया EA कितना दिया EA1 दिया है 40 3 कितना दिया है 20 और वो कितना दिया वहां पे देखो 30 ठीक है नाउ कैन आई राइट दिस एज can I write this as e raised to minus EA upon RT is equal to e raised to minus 40 upon RT1 minus 20 upon RT2 plus 30 upon RT3 देखिए क्लियर है कि नहीं देखा यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं देखिए क्लियर है यहाँ तक एक और चीज ये पूरा का पूरा रिएक्शन सेम टेम्परेचर हो रहा है सेम टेम्परेचर पे हो रहा है इसलिए T1 T2 T3 सेम ही रहेगा अगेन रिपीट पूरा का पूरा रिएक्शन एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है तो कहना से यहाँ पे मैं T और T लिख सकता हूँ सब जगह पे देखो आपको समझ में आएगा आगे इसके आगे can I now compare over there I'll get EA is equal to can I say 40 plus 20 minus 30 और ए क्या आ जाएगा मुझे बेसिकली 30 यूनिट्स क्या होगा क्वेश्चन में यूनिट्स क्या दिया हुआ है वही यहाँ पे यूनिट्स हो जाएगा ए का कोई यूनिट्स दिया कोई यूनिट्स नहीं दिया है 30 यूनिट्स लिख देता मैं
ये स्टेप से ये स्टेप पे कैसा है समझ में आया? अगर आपको चाहिए मैं यहाँ पे एक और स्टेप कर सकता हूँ, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू ई रेज टू कंपेयर किया, मुझे ई ए स्ट्रेट अवे आ गया 30, या फिर ई ए इज इक्वल टू ये कर सकते हैं आप बेसिकली। देखो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखिए मैंने बेसिकली क्या किया था, k इज इक्वल टू k1 k3 अपॉन k2। अब ये t1 t3 को मैं सिर्फ t लिख देता हूँ, देखो समझ में आ गया। हमेशा अगर t लिखूं तो बहुत इजी हो जाता है स्टार्ट से। सिर्फ बेसिकली मैंने कंपेयर किया है यहाँ पे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ a first order reaction becomes four times if the temperature is increased from 27 degrees Celsius to 47 degrees Celsius. Calculate EA in kilojoules per mole. ठीक है, समझ में कैसे आएगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है? T1 T2 दिया है, टेम्परेचर दिया, रेट कांस्टेंट दिया है, मतलब कहना है इसे आई विल यूज ओवर हियर log of K2 by K1 guys. Log of K2 by K1 is equal to EA upon ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि इट बिकम्स 4 टाइम्स, तो कहना है इसे यहाँ पे आ जाएगा K2 is equal to 4K1 log 4 आ गया मुझे। log 4 क्या हो जाएगा? कहना है इसे 2 into 0.3010 is equal to EA मुझे निकालना है, तो EA को वैसे रखूंगा अपॉन 2.303। अब EA के यूनिट्स देखो, किलो जूल्स है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? 8.314 into 10⁻³ आप लोगों को समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 47 डिग्री से, सो 320 minus 300 upon 320 into 300। So 0.6 is equal to EA upon 2.303 into 8.314 into 10⁻³ into 20 upon 320 into 300। इसको सॉल्व करने पे ये आता है 55.33। इसको सॉल्व करने पे ये आता है 55.33। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब क्वेश्चन नंबर 337 देखिए, log k वर्सेस 1/t का ग्राफ पूछा है 337 में। log k वर्सेस 1/t का ग्राफ कैसा होगा? कहना है ऑप्शन बी ओवर देयर 340 और 320 338 पहले देखते हैं। 338 के लिए 338 के लिए क्वेश्चन नंबर रीड कीजिए, क्वेश्चन 338 rate constant is becoming 10 times guys, 10 times। So can I say K2 is equal to 10 K1? T1 दिया है 200 केल्विन, T2 दिया है 400 केल्विन। यहाँ तक डेटा क्लियर है आपको? नेक्स्ट
ये निकालना है हमें इन टर्म्स ऑफ आर। फॉर्मूला क्या है देखिए, log of K2 by K1 is equal to EA ये मेरा फॉर्मूला है गाइस। हेंस कैन आई से हो हियर, यहाँ पे आ जाएगा log of K1 K1 कैंसिल हो जाएगा, log 10 1 हो जाएगा, so 1 is equal to EA upon 2.303 R और T2 T1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 400 minus 200 से 200 हो जाएगा। So EA would be equal to, can I say 2.303 into R into 400 into 200 the whole upon 200 कैंसिल हो जाएगा 200 200 ठीक है। किराए से आंसर बॉम्बे हो जाएगा। फिर देखिए क्लियर है कि नहीं आपको ये 339 लिखिएगा 339 which statement is correct? Can I say the C statement will be correct? EA is energy of activation 340 लिखते हैं 340। T1 कितना दिया है 300, T2 कितना दिया है 310। चलिए 340 देखते हैं। 340 में T1 T2 देखिए क्या है, चलिए सॉल्व करते जाएंगे। log of K2 by K1 is equal to, can I say EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। अब K2 और K1 का रिलेशन दिया है, K2 is equal to 2 K1 बोला है हम लोग ने, hence can I say this will become log 2 EA अपॉन, अब EA किसमें चाहिए देखिए वहां पे, EA आपको किलो जूल्स में चाहिए, इसलिए यहाँ पे R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 2.303 into 8.34 into 10 raised to minus 3 into T2 minus T1 upon T1 T2 310 minus 300 upon 310 into 300। देखिए ये इसको सॉल्व करो आपको आंसर आ जाएगा। बेसिकली आंसर आपको आना चाहिए यहाँ पे, आई गेस बॉम्बे आना चाहिए वहां पे आंसर। देखिए आपको समझ में आएगी नहीं ये समझ, यहाँ तक क्लियर आपको ये। अब मैं खाली आपको यहाँ पे इसके मार्किंग्स देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिस इज बेसिकली देयर ऑन पेज नंबर 23 ऑफ द रेड बुक। दिख रहा है आपको ये आपका बेसिकली रेड बुक है। यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा डिस्कस किया है। ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या है, प्लस मैंने log k वर्सेस 1/t k टू द बेस 10 वर्सेस 1/t का भी ग्राफ किया है। प्लीज अंडरलाइन ओवर हियर, प्लीज अंडरलाइन ओवर हियर, a is called as the frequency factor or the pre-exponential factor. Please underline over here, a is called as the, please underline this over here please, ये लाइन प्लीज अंडरलाइन कीजिए वहां पे। Then if you see below over there, you see below over there, यहाँ पे ही आपको बेसिकली दिखेगा कि वही पेज पे नीचे आपको दिखेगा टी और के का रेट का रिलेशन क्या है। टी बढ़ेगा तो ई अपॉन आर टी भी बढ़ेगा, माइनस सॉरी टी बढ़ेगा तो ए अपॉन आर टी कम होगा, माइनस ई अपॉन आर टी बढ़ेगा क्योंकि माइनस साइन आ गया, हेंस ई रेज टू माइनस ई अपॉन आर टी भी बढ़ेगा। के विल ऑल्सो इंक्रीज, रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ कैन यू सी ओवर हियर,
can you see on this page? This page over here, can you see this equation over here? Can you please box these both and right next to it learn? Right next to it learn Arrhenius equation, a very prominent question in the different papers over there, competitive papers over there. You should remember this equation over there. देखो क्या आपको ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद आप बेसिकली आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, जहां पे आपको ये ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। Now, the graph is basically when you take a catalyst over there, क्या होता है बेसिकली ग्राफ? ठीक है, कैटलिस्ट लिया मैंने, सबसे पहले मैंने लिया एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले मैंने लिया एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और फिर मैं लेता हूं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। If you understand over here, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेसिकली एनर्जी और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एंडोथर्मिक है, इसके प्रोडक्ट्स का एनर्जी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट का एनर्जी। नाउ if I take over here a catalyst will also go from this point to this point, reactant से products के पास जाएगा basically, but activation energy कम कर देगा वो। सर activation energy इस point पे कितना है? This is EA without catalyst। समझ में आया? नेक्स्ट में जो प्लॉट करूंगा बेसिकली वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। नाउ लुक एट द एक्टिवेशन एनर्जी नाउ। कैन आई से EA विद कैटलिस्ट? कैन आई से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया? समझा आपको? Now also over here you can make one more over here. These are all positive catalyst। नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो ये जो रेड कलर का लाइन है वो ऊपर चले जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। यहां पे भी मैं बता देता हूं कैसे होगा। ठीक है, अब मैं बेसिकली कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं। So what is the activation energy? This is the activation energy with catalyst. Both the discussions I have taken a positive catalyst. Now a question over here. What happens to delta H when catalyst is added? Just look at delta H in both the cases. Look at delta H in both the cases. Can I say in both the cases delta H तो वही रहेगा? Delta H change नहीं हो रहा है. So can I say over here delta H remains the same? Delta H remains the same. A very good question based on this. Can you come to the blue book, please? A very good question based on this is blue book question number 322. Blue book question number 322. 322 में देखो क्या दिया है आपको। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 180। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दिया है आपको
180, बैकवर्ड दिया है आपको 200, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड इज मोर हुई है, तो ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। देखो आपको क्लियर है कि नहीं, ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे। क्लियर है आपको? देखो 180 और 200 दोनों मार्क किया है यहाँ पे। ये बेसिकली आपका guys, I again repeat question number 322. क्वेश्चन नंबर 322, ईए फॉरवर्ड ईए बैकवर्ड दोनों दिया है 180 और 200। 180 और 200 दिया है। डेल्टा एच, कैन आई से डेल्टा एच विल बी एक्चुअली -20, लेकिन ऑप्शन में -20 किधर भी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है वहां पे। इसके लिए आंसर हो जाएगा वहां पे दिल्ली ऑप्शन ओवर देयर। देखिए आपको ये क्लियर है कि नहीं? इसके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आरएनएस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।